Hello guys, welcome back to my channel. So in previous video हम लोगों ने किया था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ तक फुल कर लिया था। आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Although all living cells have certain common features, detailed studies reveal some major differences between plant and animal cells. Plant cells generally have a definite shape due to a rigid cell wall around them. In comparison, animal cells have a cell membrane as their outer cover. These provide flexibility to animal cells, hence they can show a large variation in their shapes. Moreover, plant cells have plastids. These are absent in animal cells. Plant cells generally have large vacuoles. Animal cells, on the other hand, either lack vacuoles or have very small vacuoles. देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। तो हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा कॉमन फीचर सेल के बारे में पढ़ा था, फिर भी उन लोगों का बहुत सारा ग्रेट डिफरेंसेस है। तो वो सारा ग्रेट डिफरेंसेस क्या है, देखिए। सबसे पहला है कि जो प्लांट सेल्स में एक डेफिनेट शेप होता है, और वो शेप कौन देता है? सेल वॉल। यानी कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं, जिससे उन्हें एक बैलेंस्ड और डेफिनेट शेप मिलता है। और दूसरी तरफ अगर हम एनिमल सेल्स को कंपेयर करेंगे तो एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि उन लोग का आउटर कवरिंग है। जैसे प्लांट सेल्स का आउटर कवरिंग सेल वॉल है, वैसे एनिमल सेल्स का आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या करता है? एनिमल सेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और जो ये दोनों एक बहुत बड़ा अपने अपने वेरिएशन शेप्स में आते हैं, ठीक है। यही नहीं कि बल्कि प्लांट सेल्स जो है उनके पास प्लास्टिड्स रहता है, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं रहता, वो एब्सेंट रहता है। प्लांट सेल्स के पास बहुत सारा लार्ज वैक्यूल्स होता है, और एनिमल सेल्स के पास या तो वैक्यूल्स नहीं रहता, और या तो रहता है तो बहुत छोटा छोटा रहता है, देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिफरेंस पढ़ लिया। अब देखिए, द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल्स हैव बीन समराइज्ड इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए, ये चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट आपको लर्न करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है क्लास, हम लोग का सेल चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर यू मस्ट नो। सो व्हाट इज सेल? Basic structural functional unit of life. What is cell membrane? A thin membrane that surrounds the protoplasm of every cell. What is cell organelles? A specialized subunit within a cell that has a specific function. Chromosomes, thread-like structures found in the nucleus responsible for the inheritance of characters. What is cytoplasm? The portion of protoplasm lying between the cell membrane and the nuclear membrane. What is cilia and flagella? The extensions on the cell membrane which these help in locomotion and procurement of food in organisms like amoeba and paramecium. What is endoplasmic reticulum? The network of membranes which provides channels for transport of materials in the cell and helps in synthesis of proteins is known as endoplasmic reticulum. What are genes? Unit of inheritance which gets transferred from one generation to the next are called genes. Golgi complex. The sac-like structures which help in processing and packaging of materials produced by the cell are called Golgi complex. Mitochondria.
rod-shaped structures inside a cell which help in cellular respiration. Production of energy is called mitochondria. Nucleus, a specialized structure in the cells bound by the nuclear membrane responsible for controlling all cellular activities, is nucleus. What is plastids? Cell organelles found in plant cells. These may contain pigments which help in photosynthesis and are responsible for imparting color to fruits, vegetables, and flowers are called plastids. Protoplasm. The gel-like living matter present inside the cell membrane is called protoplasm. Ribosomes. Tiny granule structures found in the cytoplasm and so on the endoplasmic reticulum. They help in protein synthesis are called are known as ribosomes. Tissue, a group of cells performing a specialized function, is known as tissue. Vacuole, sac-like structure, bound structure in cells used for storing various materials, is known as vacuole. So हम लोगों ने कीवर्ड्स पढ़ लिया. ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, यू मस्ट नो. तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि ह्यूमन बॉडी में एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फिक्स्ड एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों बोला गया है? क्योंकि वो उसके बिना हमारा बॉडी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो छोटे ज़रूर है पर वो इतने सारे नंबर मिलकर हम लोग का बॉडी का एक शेप दिए हैं, इसलिए उन लोगों को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. सेकेंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशन इन देयर सेल नंबर, शेप एंड साइज. देखिए, ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, ये लोग क्या करते हैं? अपने सेल नंबर, शेप और साइज में वेरिएशन दिखाते हैं, चेंजेस दिखाते हैं. ठीक है. थर्ड नंबर, unicellular organisms like amoeba are made up of single cell. Multicellular organisms like a mango tree or a parrot are made up of many cells. Cell sizes are vary from nearly 0.1 micron mycoplasma to 170 millimeter ostrich in diameter. तो यहाँ पर बोला है यूनिसेलुलर, जैसे कि एमीबा में मान लीजिए, एमीबा में क्या होता है ना, एमीबा में वो लोग, हमको पता ही, वो लोग यूनिसेलुलर मीन्स विच इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल, तो वो लोग सिंगल सेल से बने हुए सेलुलर. तो और जो मल्टी सेलुलर जैसे मैंगो ट्री यानी पेड़, जैसे आम का पेड़ या फिर एक तोता, जो कि बहुत सारे सेल से बनाए हुए जाते हैं. तो सेल क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस मतलब इसमें डिपेंड करते हैं कि नियरली 0.1 माइक्रोन तक सेल डिपेंड करता है माइकोप्लाज्मा, जो कि वो छोटा है, सबसे छोटा सेल है, और सबसे बड़ा सेल है 170 mm, which is ostrich egg. A cell consists of living matter called protoplasm surrounded by a cell membrane. Plants, fungi and bacteria have an additional cover known as the cell wall outside their cell membrane. देखिए, सेल में एक लिविंग मैटर एग्जिस्ट करता है, लिविंग मैटर एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म पढ़ते हैं. वो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है. वो जो लिविंग मैटर है वो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है. और जो प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया जो है उनके पास एक एडिशनल कवर होता है उन लोगों को प्रोटेक्ट करने. एडिशनल कवर का मतलब जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, तो उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के
बाहर रहता है। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रहता है। और साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस के बीचों बीच प्रोटोप्लाज्म लाई करता है। The nucleus controls all activities of the cell. The cytoplasm contains many cell organelles. These perform various functions in a cell. तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सारा एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, वो जीवन में बहुत सारे एक्टिविटीज है जो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस में भी बहुत सारा सेल है, सेल ऑर्गेनल्स है, जो कि सेल जो कि बहुत वेरियस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, मतलब वो लोग बहुत तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। 7 नंबर देखिए, some of the cell organelles and their functions are as follows. Mitochondria are responsible for respiration. Green colored plastids or chloroplasts are the site of photosynthesis. Golgi complex processes materials produced by the cell. Vacuoles store excess water and waste. Ribosomes help in protein synthesis, and cilia and flagella help in locomotion. देखिए क्या बोला है, कुछ कुछ सेल मेम्ब्रेन्स और फंक्शंस यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आप लोग पढ़े हो कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आता है और एनर्जी जनरेशन में काम आता है। फिर बोला है यहाँ पर प्लास्टिड्स या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट भी आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। फिर है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स सबको पता है कि वो लोग फूड पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, सेल के अंदर मटेरियल्स पैकेजिंग करने में सेल के अंदर उन लोग हेल्प करते, पता है आप लोग को। फिर और क्या करते हैं, और वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या करते हैं, वैक्यूल्स एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड वेस्ट जमा करके रखते हैं। राइबोसोम्स जो कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में काम आते हैं, मतलब प्रोटीन्स को हजम करने में वो लोग मदद करते हैं। और लास्ट है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया फ्लैजेला क्या करते हैं, लोकोमोशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड में काम आता है, यानी कि वो लोग कलेक्शन करते हैं या फिर बॉडी में, मतलब फूड कलेक्ट करते हैं। तो ये उन लोगों का काम है, ठीक है। अब 8 नंबर, अब टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन। देखिए टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ये सारा सेल्स जब एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करेगा तो ये बन जाएगा हम लोग का टिश्यू। अब 9 नंबर, an organ is formed by a group of tissues that perform a specialized function. When a number of organs work together they perform an organ system, for example digestive system। देखिए जैसे सारा इतना सारा सेल मिलकर टिश्यू बन रहा है कंबाइन होकर, वैसे ही सारा ऑर्गन्स अगर एकजुट हो जाए तो वो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ, जो कि टिश्यूज के ग्रुप से बना हुआ था, यानी पहले टिश्यू बना, फिर टिश्यू का ग्रुप से ऑर्गन बना, तो ऑर्गन कहाँ से फॉर्म हो रहा है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। सो ऑर्गन कहाँ से फॉर्म हो रहा है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, जो कि एक बहुत खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जब सारा ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं तो वो लोग ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यानी जब ऑर्गन लोग एक साथ जुट हो जाएंगे, कंबाइन होकर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तब ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, plant and animal cells show some major differences. Plant cell possess a cell wall and plastids. These are not found in an animal cell.
Also, plant cells contain large vacuoles. The vacuoles are either absent in animal cells or if present have a small size only. देखिए, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में बहुत गहरा अंतर है। तो प्लांट सेल्स क्या करते हैं, उन लोग के अंदर सेल वॉल रहता है और प्लास्टिस रहता है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। और फिर से देखिए, प्लांट सेल्स में बहुत बड़ा बड़ा वैक्यूल्स होता है, जो कि एनिमल सेल्स में या तो छोटा या तो एब्सेंट रहता है। तो आज की हम यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, और इसी तरह हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर विथ ऑब्जेक्टिव्स एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।